नमस्कार महोदय एवं महानुभावों, मेरा नाम है नम्रता सहरावत और मैं हूं आप सभी की सूत्रधार। एयर लिक्विड की ओर से मैं आज यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों एवं विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ कि वह अपना कीमती समय निकाल यहाँ आए और अपनी उपस्थिति से इस शिलान्यास समारोह की गरिमा बढ़ाए। It is my immense pleasure to extend a very warm welcome to all the dignitaries and distinguished guests for gracing the occasion with their glorious presence. आप सभी की उपस्थिति हमारे लिए हर्ष और उल्लास का विषय है और खुशी की एक नई लहर लेकर आई है। मैं स्वागत करती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने हमें अपने आशीर्वाद के रूप में अपना अमूल्य समय दिया और हमें अपनी गरिमामय उपस्थिति से अनुग्रहित किया। मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ श्री सतीश महाना जी का, माननीय औद्योगिक विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, श्री संजीव मित्तल जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, श्री अरविंद कुमार जी, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, श्री मयूर महेश्वरी जी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपी सिडा, श्री मुथु कुमार सामी डीजी, विशेष सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग। It is my absolute honor and privilege to welcome Mr. Olivier Rande, Vice President, Middle East and India Cluster, and Mr. Benoit Renard, Managing Director, Air Liquide India. और साथ ही साथ मैं स्वागत करती हूँ राज्य एवं जिला प्रशासन के प्रबुद्ध अधिकारियों का। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी एयर लिक्विड इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री बेनोit रेनार्ड जी से कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए इस सभा का शुभ आरंभ करें और साथ ही साथ एयर लिक्विड कोसी प्रोजेक्ट एवं ग्लोबल वीडियो की प्रस्तुति के द्वारा एयर लिक्विड के सिद्धांत एवं लक्ष्य पर प्रकाश डालें। I would humbly request the Managing Director, Air Liquide India, Mr. Benoit Renard, to kindly welcome the Honorable Chief Minister and open the gracious ceremony by shedding light on the aim and vision of Air Liquide via COSI project presentation and video display. Good evening. So, on behalf of Air Liquide, a warm welcome to all of you for taking time to be with us in this ceremony, despite the COVID restriction on your busy schedule. Today, it's a very important milestone for Air Liquide. It is my honor and great pleasure to officially present this promising project in Uttar Pradesh, our latest investment in India, with an air separation unit producing 300 tons per day of oxygen. This plant in Kosi Kalan will be the largest standalone plant in India. This new investment will enable us to increase our capacity to serve our customers in north of India while investing in long-term growth opportunities in Uttar Pradesh. Air Liquide is very proud to be joining the community of Uttar Pradesh, and we look forward to successful partnership with the citizens, businesses, and authorities for many years to come. For the groundbreaking ceremony, we are pleased to welcome the Honorable Chief Minister Yogi Adityanath ji, Honorable Minister for Industries Shri Satish Mahana ji, Shri Sanjeev Mittal, Infrastructure and Industrial Development Commissioner, Shri Arvind Kumar, Additional Chief Secretary, Department of Infrastructure and Industrial Development, Shri Mayur Maheshwari, CEO, UPSIDA, and Dr. Muthu Kumar Swamy, Special Secretary, Department of Infrastructure and Industrial Development, and all respected dignitaries from states and district administration. Before introducing the project in Kosi Kalan, I would like to share with you a short presentation of Air Liquide Group through a video.
India is one of the fastest growing markets for Air Liquide and remains a strategic country for our company. We believe in the long-term growth potential in India. This new investment is the fifth air separation unit built and operated by Air Liquide, illustrates our commitment towards India. Now, I would like to take the opportunity to share with you a rapid brief regarding Air Liquide activities in India. Air Liquide started operation in 1996 and operates 5 entities across India. Our gas and service division, which shall own this unit, is based in Delhi and operates various air separation on on-site units, cylinder filling stations, including hydrogen and helium, and focused in north and west of India. Overall, Air Liquide has 600 employees, serving more than 2,500 customers and hospitals. Regarding the project itself, Air Liquide will invest approximately 350 crores rupees, about 40 million euros, in this brand new air separation unit with a daily production capacity of 350 tons per day, oxygen, nitrogen, and argon. Air Liquide India will employ 75 new collaborators to operate the plant and to run the supply chain. Thanks to the constant collaboration between Uttar Pradesh authorities and the Air Liquide team in the frame of the oxygen production promotion policy launched by the government, we were able to expedite the investment decision with a significant amount of subsidies, around 42 crores rupees. We plan to commission within the next 24 months the new plant, and we look forward to a fast-track execution of this plant with the continued support of Uttar Pradesh government. I'm pleased now to share with you a short video of the site where the plant will be located. In order to ensure 100% reliability to our customers and patients, Air Liquide invests on the right supply chain, including tanks and tankers, and we have our own fleet of trucks and tankers equipped with the latest technologies for highest level of road safety and reliability. The Air Liquide Group is committed to a sustainable development structure around 3 main pillars: AECT. A stands for abatement of CO2 emissions. C stands for care for patients. T stands for trust as a base to engage all of our stakeholders. In this regard, our commitment is to start the COSI plant with 40% green energy, meeting the Air Liquide Group commitments of sustainable development, decrease of scope 1 and 2 CO2 emissions in absolute value by 33% by 2030, and reach the carbon neutrality before 2050. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Benwa, for a wonderful presentation and sharing your valuable insights with us. आखिरकार वो क्षण आ ही गया जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। मैं प्रार्थना करती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से कि वह अपने कर कमलों द्वारा इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का शिलान्यास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनावरण होते हुए यह एक ऐतिहासिक पल है जो उत्तर प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
एवं राज्य को ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के लिए मदद करेगा। We have currently witnessed the auspicious unveiling of the foundation stone of Air Liquide's air separation plant at Kosi, Uttarakhand. अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में इन्वेस्ट यूपी से अनुरोध करूंगी कि वह कृपया एयर लिक्विड को इस प्रभावशाली प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट प्रदान करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, इन्वेस्ट यूपी एवं श्री बुद्धादेव जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के माननीय औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना जी को कि वह अपने अमूल्य विचार प्रकट करें। I may now humbly request Shri Satish Mahana ji, Honorable Minister of Industrial Development, Government of Uttar Pradesh, to kindly share his precious thoughts. Thank you very much. आज बहुत सौभाग्य की बात है कि एयर लिक्विड द्वारा जो अपना नया प्लांट मथुरा के कोसी कला में स्थापित किया जा रहा है, उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। मैं ये बात यहाँ बड़ी हर्ष और प्रामाणिकता के साथ कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश आज प्रगति के पथ के ऊपर आगे है। पिछले लगभग 2 वर्षों में जिस प्रकार से कोविड का हम लोगों ने प्रकोप देखा और विशेष रूप से जो सेकेंड वेव थी, उसमें जिस प्रकार की ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति के लिए मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस समय ये शुरू हुआ समवेयर इन मिड ऑफ मार्च, और जितनी उसकी आवश्यकताएं थी, जो मिड ऑफ मार्च से लगभग 350 टन की आवश्यकता से शुरू हुआ, वो लगभग 20 दिन में ही 1150 मीट्रिक टन से ज्यादा उसकी लिक्विड ऑक्सीजन हमारे को उपलब्ध हुई। मुख्यमंत्री जी के दूरदृष्टि के कारण, उनके विजन के कारण हमने पूरे प्रदेश में आवश्यकता अनुसार जो लिक्विड गैस थी, ऑक्सीजन, हमने उसको वहां पर आपूर्ति करी और वहां पर पहुंचाने का काम किया। उसका ट्रांसपोर्टेशन की जो आवश्यकताएं थी वो मीट आउट हुई, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी सही समय के ऊपर पहुंचने के लिए वो मीट आउट हुई। आज उत्तर प्रदेश में जो इसी दरमियान विद इन दिस पीरियड ओनली कोविड पीरियड, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डिसाइडेड कि वी हैव टू कम अप विद दिस टाइप ऑफ पॉलिसीज that oxygen, liquid oxygen manufacturers, they may come to Uttar Pradesh. और हमने वो जो पॉलिसी बनाई, those policies attracted the industries, especially the people those who are in liquid oxygen manufacturing. तो जिस समय उनको बुलाकर हमने इस पॉलिसी के बारे में बताया, तो बहुत सारे लोगों ने जिनसे हमसे जमीन की अपेक्षा की और जो हमारी पॉलिसी के अंतर्गत जो उनको हम इंसेंटिव्स दे सकते थे, तो बड़ी संख्या में हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस आई। लेकिन मैं एयर लिक्विड के एमडी श्री बिनॉय रेनॉल्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया और हमारे इन्वेस्ट यूपी के द्वारा, सारे सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा विद इन लिमिटेड टाइम, बहुत कम समय में ही उसको हमने उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया और उनको आज लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया गया। मुझे विश्वास है कि जो समय सीमा आपने निर्धारित की है इसको पूरा करने की, आप उसको पूरा करेंगे। आज उत्तर प्रदेश सेल्फ सफिशिएंट है ऑक्सीजन के नाते से, और आप जिस समय आएंगे, जिस समय एयर लिक्विड आएंगे हमारे पास, उसमें हम उत्तर प्रदेश पूरे नॉर्थ इंडिया को एयर लिक्विड ऑक्सीजन देने की स्थिति में होगा। समय की सीमा है। आई वुड थैंक MD एंड अदर friends, those who have joined virtually on this stage, honorable चीफ मिनिस्टर अपनी ब्लेसिंग्स हमारे को देंगे। और आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल्सो, किसी भी स्थान के ऊपर किसी भी आवश्यकता हो, और हमने जो कैपिटल सब्सिडी की घोषणा करी है उसमें किसी भी प्रकार के जो पहले प्रॉब्लम्स होती थी वो सारी के सारी प्रॉब्लम्स उसमें एड्रेस किए गए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जिस दिन से आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, अपने आप जो हमारे कमिटमेंट्स हैं हम उसको पूरा करेंगे। मुझे विश्वास है एयर लिक्विड केवल उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया को इससे लाभ होगा और उत्तर प्रदेश में एक नए आयाम की शुरुआत होगी ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उनके द्वारा जो एक विजन दिया गया और जो कोविड के समय में पूरी दुनिया ने जिस प्रकार का प्रकोप देखा है, उसको देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि कैसे कोविड मैनेजमेंट हो सकता है, कैसी उनकी आवश्यकताओं की पूरी हो सकती है। मैं पुनः
माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकालकर आज इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए। और मैं एयर लिक्विड के सारे एमडी और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में आकर आपने एस्टैब्लिशमेंट को आपने शुरू करने का जो शुरुआत करी, आज यहाँ पर शिलान्यास किया है और हमने जो लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया है उससे बहुत तेजी के साथ आप अपना काम पूरा करेंगे। एक बार पुनः सभी उपस्थित हमारे अधिकारियों को और माननीय मुख्यमंत्री बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपके बहुमूल्य शब्दों से आज के वातावरण को आलोकित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आज के शिलान्यास के पल एयर लिक्विड के इतिहास के पन्नों में लिखे जाएंगे, जिसका नेतृत्व किया आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। एयर लिक्विड इसके लिए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। महोदय, आपको परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी प्रेरणा, अमूल्य सहयोग, मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद के बिना यह आयोजन एक दीवा स्वप्न की तरह ही था। अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हम सभी को आशीर्वचन दे एवं हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। एयर लिक्विड के जनपद मथुरा में स्थापित होने वाले ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट के आज के इस आधारशिला कार्यक्रम में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री सतीश महाना जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास आयुक्त श्री संजीव मित्तल जी, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास श्री अरविंद कुमार जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव श्री एसपी गोयल जी, एयर लिक्विड के एमडी श्री बेनाइट रेनॉल्ड, एयर लिक्विड से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण और वर्चुअली माध्यम से जुड़े हुए सभी गणमान्य अन्य अतिथिगण, मैं सबसे पहले एयर लिक्विड द्वारा उत्तर प्रदेश में 362 टन प्रतिदिन क्षमता के एक अत्याधुनिक एयर लिक्विड प्लांट स्थापना के लिए एयर लिक्विड को और उनके पूरे प्रबंधन को हृदय से धन्यवाद देता हूं। औद्योगिक विकास विभाग ने एक समय सीमा के अंदर इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है, विभाग भी इसके लिए हृदय से धन्यवाद का पात्र है। वास्तव में ऑक्सीजन और उसमें भी एयर लिक्विड ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या होती है, ये हम लोगों को इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान देखने को मिला। खासतौर पर जब कोरोना महामारी की सेकेंड वेव के दौरान पूरी दुनिया के अंदर ऑक्सीजन की क्राइसिस देखने को मिली थी और उन स्थितियों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने कुछ लक्ष्य रखे थे। ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इस पर अनेक कार्यक्रम हुए। पहली बार दुनिया ने देखा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एयरफोर्स के प्लेन लगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त टैंकर लगाए जा रहे हैं और पूरे देश के अंदर एक जैसी स्थिति थी। दुनिया के अंदर भी जहां भी सेकेंड वेव ने अपना प्रभाव जमाया वहां पर इस प्रकार की क्राइसिस देखने को मिली थी, लेकिन उन्हीं में से हमें रास्ता भी निकालना है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज उस कालखंड में प्रदेश के अंदर की समस्या का समाधान करने की दिशा में हम लोगों ने जो अपनी पॉलिसी बनाई थी, उस पॉलिसी के दायरे में
एयर लिक्विड ने उत्तर प्रदेश में रुचि ली और उत्तर प्रदेश के मथुरा जैसे शहर के कोसी कला में 362 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का एक नया संयंत्र लगाने का निश्चय किया है और आज उसकी आधारशिला हो रही है। मैं एयर लिक्विड को इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। यह प्लांट हमारे लिए केवल ऑक्सीजन उत्पादन के लिए नहीं, ये केवल मेडिकल ऑक्सीजन के लिए ही नहीं होगा, बल्कि तरल नाइट्रोजन, तरल ऑर्गन के उत्पादन के लिए ही, के लिए तो ये कार्य करेगा ही। इंडस्ट्री को भी उसकी आवश्यकता के अनुरूप ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में इससे मदद मिलेगी और उत्तर प्रदेश में 362 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ साथ रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने में यह मदद करेगा। मैं आज के दिन पर आप सबको इस बारे में कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पॉलिसी में जो भी वायदे किए हैं समयबद्ध ढंग से हम उन सबको प्रदेश के अंदर लागू करेंगे और हर एक निवेशक को इस बात के लिए हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि प्रदेश की पॉलिसी के दायरे में रह करके प्रदेश सरकार न केवल आपकी पूंजी को बल्कि आपके फ्यूचर की भी सुरक्षा की पूरी गारंटी देती है और आप अपने निवेश को एक निश्चित माहौल में प्रदेश के अंदर करते हुए प्रदेश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अपना योगदान देने के लिए जो आप लोगों ने अपना सहयोग किया है, मैं इसके लिए एयर लिक्विड को एक बार फिर से प्रदेश सरकार की ओर से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब मिलकर के इस प्रकार के निवेश के माध्यम से आम जन के मन में एक नया विश्वास भरने में सफल होंगे। एक बार फिर से एयर लिक्विड से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद और औद्योगिक विकास विभाग को इस बात के लिए कि वह समयबद्ध ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे लेकर के जाएगा, इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे मुख्य अतिथि के प्रभावशाली शब्दों ने हमें आकर्षित किया। आदरणीय योगी जी, आपके शब्दों से हमें प्रेरणा मिली है और हमेशा मिलती है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की मौजूदगी मात्र हमें विश्वास से भर देती है। एक बार फिर धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। We are pleased to have Mr. Olivier Rande, Vice President, Middle East and India Cluster. I would kindly request him to thank all the dignitaries and say a few words. Thank you very much, and I'm very happy to be with you this afternoon for this very important milestone in our development in India. And Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji, I would like to thank you very much for your kind words and very insightful thoughts. I also take this opportunity to thank Shri Mahanath ji for sharing his thoughts and graces this occasion with his kind presence. I also thank the authorities from the Uttar Pradesh government who are working very diligently to make Uttar Pradesh a preferred destination for new investors. And you know, the letter of comfort that we are receiving today, as well as the land allotment that we got in a very short time, both illustrate the cooperation that is extended by all the stakeholders. And this is extremely important to us. And I would like to really thank all of you very much. As you know, a project is successful when it starts on time, and this is what is happening. So I would really like to convey my thanks and specifically mention the professionalism and the constant support that has been provided and that is provided by the Department of Industries, Nivesh Mitra and Mathura administration, and not least the handholding done by Ernst & Young during the finalization of the project. So on behalf of Air Liquide Group, we reiterate our strong commitment towards progressive investment in India in coming years.
We will be investing in new air separation plants, healthcare, specialty gases, and related areas. We really see India as a very strategic market to us, and we are delighted to be part of this great journey in India, keen to contribute to the society, and we will be happy to advocate India as an investment destination to various global companies. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Olivier Rande, for your very kind words. आज एयर लिक्विड के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस अगले कदम में हमारा साथ देने के लिए आप सभी यहाँ एकत्रित हुए, इसका धन्यवाद शब्दों में नहीं किया जा सकता। तो आज इस कार्यक्रम को विराम मैं श्रीमती नम्रता भट्टाचार्य की इन पंक्तियों के साथ देना चाहूंगी। आरंभ वो जो जीवन को नई उड़ान दे, अंत वो जो आरंभ को नई पहचान दे, अंत वो जो पतझड़ को बसंत कर दे, आरंभ वो जो अंत को भी अनंत कर दे। अंत ही नए जीवन का प्रारंभ है, अंत में ही अनंततः निहित आरंभ है। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ तो समझना ये नई एकता का शुभ आरंभ है, ये अंत नहीं आरंभ है। जय हिंद।